Most probably we're live now, but let me see. Let me check it out. Yes, we are live. Hello, everyone. Thank you so much for joining. The lady sitting just next to my screen is Subhi Khan, lawyer of Supreme Court of India. And you must have seen on the Youth India. She was viral once again. And when she was exposing, I think you were exposing some protest going on in Delhi. Am I right, ma'am? Can you hear me? Am I audible to you, ma'am? I think there is a. No, actually, your voice is breaking. आपकी आवाज कट रही है. आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है. आवाज आपकी बहुत बीच में कट रही है. I think there is net connect some problem. There is. She is sitting right now in Delhi. I'm sitting in another city. So there is a problem. I think you can hear me now. Can you hear me now? Hello. Yeah, can you hear me? Can you hear me now? जी मृत्युंजय जी, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? क्योंकि आपकी आवाज मुझे बिल्कुल बिट्स एंड पीसेस में आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट यू आर सेइंग. वो एक दो वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं. So I think just very simple question I'm going to ask you. The first question is, if you can hear me, that so many people call you BJP agent because they also give their reasons, but the people call you, most probably those who are from a different lobby, they call you a BJP agent. So are you a BJP agent? A very good and interesting question. Actually, I like to answer this question by a counter question. Like, if you like someone, or if you really believe in the ideology of a person or an organization, like if someone's ideology resonates with what you believe in, do you become the agent of that person? Like, for example, if you like Osho, do you become agent of Osho? So this question itself sounds a bit childish to me, uh, because I think I have been explaining this in many of my videos, that the reason why I support BJP and I am a staunch believer in their ideology is because I have been studying about the socio-political and cultural history of our Right. country, and whatever has Right. happened specifically in the past 70 years. So if any of us will go through it, you will definitely come to know that other than BJP, we do not have any other alternative, any other political Right. alternative to run the country. And I have my reasons to, say so. Let me give you one example. जैसे अभी हमने राम मंदिर का इशू देखा, बहुत सारे लिबरल या सेक्युलर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि आप मंदिर के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं, आप अस्पताल बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए. तो देखिए, उस पॉइंट पे मैं हमेशा, मेरा ये बोलना है कि देखिए, राम मंदिर किसी एक स्पेसिफिक फेथ से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है. मृत्युंजय जी, हमारी कंट्री में पिछले 70 सालों में भी और उससे पहले 1000 सालों तक हमारे कल्चर को डेलिबरेटली ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ा गया है. हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे शास्त्र, सारी चीजें डेलिबरेटली खत्म करी गई हैं. और राम मंदिर एक बहुत बड़ी हमारी जीत, या ये कहिए कि हम लोग क्योंकि लड़ना किसी से नहीं चाहते हैं, हमारी नेशनल एथॉस फाइट करने वाली नहीं है. हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और मतलब अतिथि देवो भवः, इस तरह की हमारी आइडियोलॉजीज रही हैं. बट एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना, एक बेसिक डिफेंस के लिए पूरी दुनिया पे आप चाहे आक्रमण मत करिए, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना बहुत जरूरी होता है. और राम मंदिर का मतलब ये है कि देखिए, श्री राम को हम मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम. जब हम बोलते हैं, दैट मीन्स कि आप हर भारत के हर आइडियल पुरुष को कैसा होना चाहिए, जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो एक रामत्व है, जो आइडियोलॉजी है कंट्री की, दैट वाज राम मंदिर. सो दैट इज वन ऑफ द इश्यूज व्हिच बीजेपी हैज बीन वर्किंग ऑन. तो मैं बिल्कुल, देखिए, बीजेपी को वोट देती हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे देश को बहुत सशक्त, सक्षम और विश्वगुरु बनाने में इनका उनका थोड़ा सा बहुत अलग से रोल पूछना है. है. इनका प्रश्न ये है कि क्या आपको कहीं पैसा वगैरह मिलता है? इनका ये नहीं पूछना है कि आप बीजेपी के एजेंट. मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपको कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट है,
इनका सीधा प्रश्न ये रहता है, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहता है कि देखिए क्या आपको देखिए पैसा मृत्युंजय मिलता जी, है? जो देखिए मुझे अपनी विचारधारा के लिए कुछ बोलने के लिए मृत्युंजय जी अगर पैसा लेना पड़े तो देखिए मैं उस तरह की Yes. मानसिकता पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। प्लस अल्लाह के लाख लाख शुक्र से आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मैं किसी के पेरोल पर नहीं हूँ। लाइक आई एम एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग लॉयर फ्रॉम द पास्ट 10 years। सो आई डू Right. नॉट थिंक दैट आई नीड मनी। आई डू नॉट नीड मनी टू स्पीक फॉर व्हाट आई रियली बिलीव इन। जो जो मेरा अपना Correct. कन्विक्शन है उसको बोलने के लिए अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है या मीडिया मुझे बुला रही है, चैनल्स मुझे बुला रहे हैं, तो आई फील लकी कि मुझे अपनी बात या अपनी विचारधारा या अपना जो विजन है देश के लिए वो लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। व्हाई वुड लोग एनीबडी नीड मनी फॉर दैट? लोग कुछ सवाल पूछेंगे। बिफोर आई मूव टू अनदर क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रीड आउट जी, सम क्वेश्चंस। मानसी पाठक कहते हैं कि सी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, सी इज योर बिग फ्रेंड, और सी वॉचेस थैंक यू सो मच। योर टीवी डिबेट्स। और इसके अलावा क्या आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? मुझे क्वेश्चन तो नहीं दिखा। मुझे विशाल विशाल नायक जी नायक। का मैसेज, जी जी जी, जी जी, आई कैन या सी सुबुही, गुड टू सी यू स्टैंडिंग सॉलिड बिहाइंड फैक्ट्स एंड ट्रुथ। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हम कुछ और इट क्वेश्चंस दिस स्क्रीन पे फेथ लेंगे। रियली मीन्स अ लॉट टू मी। जी बिल्कुल। कुछ और क्वेश्चंस स्क्रीन पे लेंगे। दिख पा रहा आपको एक और क्वेश्चंस? जी जी। हर्ष गुप्ता है। Harsh Gop, ji, ji, ji. These Bollywood stars, so call them liberals. They talk when they think they will gain publicity. They always give statement that's worsen the situation. Ma'am, my question is, how can we prevent these to create nuisance? वेरी गुड क्वेश्चन हर्ष जी। हम्म। देखिए मैं खुद भी ये मानती हूँ कि जब हम सेलिब्रिटी होते हैं, सुनना पसंद हम्म। करते हैं या हमारी बात को मानते हैं, तो हमें अपने अल्फाजों की या जो हम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी बातों का एक इम्पैक्ट होता है। लैक्स एंड इवन करोड्स ऑफ पीपल फॉलो यू। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड हमारा एक बहुत बड़ा मेजर चंक हैज बीन हाईजैक्ड बाय एंटी नेशनल पावर्स। हम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की बहुत सारी मतलब बहुत सारा मतलब पोर्शन जो है वो अंडरवर्ल्ड के द्वारा चलता है। तो वो लोग अपने हिसाब की मूवीज बनवाते हैं, अपने हिसाब के नरेटिव सेट करवाते हैं, ये हम सभी देखते हैं। इसमें मैं हम्म। एक चीज मैं करती हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सोनाक्षी सिन्हा को आई थिंक रामायण के बारे में नॉलेज नहीं थी। और हम्म। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका अमेरिका में मूवमेंट चल रहा है, तो ब्लैक लाइव्स मैटर के ये लोग बहुत मूवमेंट चला रहे हैं, बट हम हमारी अपनी कंट्री में साधुस का मर्डर हो जाता है या किसी भी स्पेसिफिक किसी का भी मर्डर हो हम्म। जाता है। एनिमल्स, अभी केरला में देखिए एक प्रेग्नेंट एलिफेंट का कितनी बुरी तरह से बेदर्दी के साथ मार दिया गया। तो जो इश्यूज अपनी हम्म। कंट्री में भी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, फेथ, क्रीड, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाटएवर, देखिए ऑल लाइव्स मैटर। और अमेरिका में तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये, क्योंकि ये यूथ का चैनल है, मैं जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूंगी मृत्युंजय जी कि देखिए ये हम्म। कम्युनिस्ट्स की मानसिकता होती है कि ये समाज में हमेशा डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक तबके को बोलेंगे कि हम्म। तुम प्रताड़ित हो, एक तबके को हम्म। बोलेंगे कि ये अब्यूजर है, दोनों को आपस में हम्म। लड़ा देंगे। और प्रताड़ित वाले को कभी ये भी नहीं चाहेंगे कि उसका अपलिफ्टमेंट हो, हमेशा चाहेंगे कि वो हम्म। प्रताड़ित ही रहे ताकि हम उस पर अपनी राजनीतिक और इकोनॉमिक रोटियां सेकते रहें। तो देखिए आई हम्म। बिलीव कि ऑल लाइव्स मैटर। हम कोई भी ब्लैक राइट। व्हाइट सारी लाइव्स मैटर, हमारा सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए और गलत को गलत और हम्म। सही को सही हमें बोलना चाहिए। बात हर्ष जी ने बॉलीवुड पे करी थी, तो मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए जो हम अपने कल्चर से टूटे हैं उसका एग्जाम्पल देखिए। ये जो बॉलीवुड वाले जब ये अपने ड्रामा स्कूल्स में जब ये पढ़ते हैं, जब इनको पढ़ाया जाता है, तो जो इनकी हम्म। बुक्स हैं, आपको पता है वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आर्ट के, वो हमारे कश्मीर में जो है राइटर्स, जो जो हमारी एंशियंट लिटरेचर है उसमें लिखे हुए जो लिटरेचर है उसके ऊपर इनकी सारी ड्रामा की बुक्स लिखी जाती हैं। रस आपने कभी सुने होंगे, जो हमेशा रस होते हैं, वीर रस, प्रेम रस, कविताओं में जो हमारे हिंदी लिटरेचर में रस होते हैं, ये सब इनको पढ़ाए जाते हैं। कि नौरस, आप जब एक्टिंग करते हैं तो आप सोचिए कि जहां से आप अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे हैं,
जो आपकी हम्म एक्चुअली ड्रामा स्किल्स का, आपकी पूरी एक्टिंग की जो मॉडर्न पढ़ाई लिखाई है, उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं। उसके बावजूद आप अपने कल्चर के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, उसके बावजूद आप एंटी नेशनल फोर्सेस के हाथों में खेलते रहते हैं, तो दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। एंड वन हम्म थिंग आई वुड लाइक टू से, कि एज आई ऑलवेज से, कि कोई भी कुछ लोग गलत होने से पूरी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हम गलत नहीं कह सकते। बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसी नेशनलिस्ट वॉइसेस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कल्चर के लिए बोलती हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों को उनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। Do you think, ma'am, that some funds come from China and Pakistan because they often speak for these two countries? They sympathize terrorism, they sympathize nationalism. What could be the reason? एब्सोल्युटली मृत्युंजय जी, देखिए ये इंटरनेशनल फंड्स वाली पॉसिबिलिटी तो छोड़िए, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। ये तो हर चीज में हमें Hmm. देखने को मिलती है। आप देश में कभी भी देश तोड़ने वाली कोई भी चीज देखिएगा, आपको पता चलेगा। कभी आपको पता चलेगा केरला में सऊदी से पैसे आ रहे थे वहां के मदरसास को फंड करने के लिए, या आईसिस रिक्रूटमेंट के लिए। कभी आपको पता Hmm. चलेगा कि जो सीएए प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में, उनको आम आदमी Hmm. पार्टी के एक नेता ताहिर हुसैन के अकाउंट से 1.10 करोड़ रुपीस ट्रांसफर होते हैं। अभी हमने देखा Hmm. तबलीगी जमात के मौलाना शाद जो डेलिबरेटली कोरोना स्प्रेड कर रहे थे, उनके उनके अकाउंट हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, 100 से ज्यादा उनके अकाउंट्स हैं। और जनवरी फरवरी मार्च सबसे ज्यादा पैसा उनके अकाउंट में इंटरनेशनली आया है। तो देखिए मृत्युंजय जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस हमारे देश के अगेंस्ट काम कर रही हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल Hmm. पार्टीज हैं, कुछ इंटरनेशनल पावर्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, कम्युनिस्ट्स हैं, Hmm. नक्सलवाद है, Hmm. माओवाद है। तो ये इतनी सारी हमें जो है ताकतों का मतलब हमें सामना करना है, हमें फेस करना है। तो हमें पूरा सोशो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल कल्चरल वे में अपने देश की प्रॉब्लम्स को समझना होगा, क्योंकि हम लोग कल्चरली, ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग है, साइकोलॉजिकली हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रांग है भारत, कि अगर हमने Hmm. अपनी ताकत पहचान ली, या अगर हमने इन एंटी नेशनल पावर्स को अपने देश से निकाल के फेंक दिया, तो हम विश्व गुरु बन Hmm. जाएंगे। तो उस चीज से भी ये लोग डरते हैं। तो सब लोग, एक पूरा नेक्सस है जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है। मैं एक सीधा प्रश्न करूंगा। मुझे लगता है कि यह जो प्रश्न है सभी लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोग कहीं मत चाहिए। जो सीधा प्रश्न मैं करूंगा वो ये है। पहला प्रश्न, आप खुलेआम बोलती हैं, डायरेक्ट बोलती हैं, और डायरेक्टली जो भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, मौलाना हैं, जो भी जिहादिस्ट हैं, आप डायरेक्टली, आपको क्या डर नहीं लगता? और डर लगता हो ना लगता हो, लेकिन मैं ये जो प्रश्न है मेरा, कि आपको थ्रेट्स आते हैं? जी, देखिए आपका पहला सवाल कि क्या मुझे डर नहीं लगता, तो मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि देखिए डर एक बहुत नेचुरल फीलिंग है। डर कभी ना कभी सबको लगता है। इट इज योर चॉइस कि आप उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि नहीं होने देते हैं। मुझे मेरे अब्बा ने, मेरे फादर ने, ही इज नो मोर बट ही इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ। उन्होंने मुझे बचपन राइट। से ये सिखाया कि जिस चीज से आपको डराया जा रहा है, कोई भी चीज जिससे आपको डराया जा रहा है, उसको जाके उसके पास जाके जरूर देखिए। बिकॉज कोई ना कोई एजेंडा है जो आपको डराया जा रहा है उसके पास जाने से लिए। जो हम आजकल देखते हैं, फेस योर फियर्स, जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो फेस योर फियर सिर्फ 3 लाइंस नहीं है, एक बहुत गहरी बात है। द मोमेंट यू विल फेस योर फियर्स, तो आपको एक पूरे डिफरेंट प्लेन में, एक डिफरेंट एरिना में आप पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपको अपने कंफर्ट लेवल में देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, करेक्ट। धमकियों की आप बात करते हैं, मुझे डेफिनेटली आती हैं। मैं अपने सोशल मीडिया पे वो शेयर भी करती रहती हूँ, स्क्रीनशॉट्स उन नंबर्स के। बहुत सारी कंट्रीज से मुझे धमकियां ऑलमोस्ट एवरी डे आई गेट रेप थ्रेट्स, आई गेट डेथ थ्रेट्स, और गालियां, अब्यूजेस, थ्रेटनिंग, व्हाटएवर सब कुछ मुझे मिलता है। लेकिन एक चीज में मैं ट्रूली बिलीव क्योंकि करती हूँ मैं मृत्युंजय थोड़ी सी मैं जी। ऐड करूंगा, क्योंकि अगर यही थ्रेड्स लिबरल लॉबी को मिलती, तो आपको पता है कि इस हम्म तरीके से वो लोग प्रदर्शित करने लग जाते हैं। लेकिन आपको हम्म। मिलती है तो किसी को पता भी नहीं चलता है। देखिए मैं आपको यही बताती हूँ कि देखिए प्रदर्शन उसका करना और या उसको यूज करने की कोशिश करना, वो एक बहुत ही ओछी मानसिकता की निशानी है। क्योंकि ये लोग हर चीज हम्म। को सेंसेशनलाइज करते हैं, और हम्म। सेंसेशनलाइज करने की कोशिश हमेशा वो करता है जिसके पास रियल कुछ नहीं है। तो मैं हम्म। इस चीज को देखिए बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज करने की कोशिश इसलिए नहीं करती हूँ। मैंने अभी तक एफआईआर भी नहीं कराई है, मैंने गवर्नमेंट से हम्म। सिक्योरिटी भी नहीं मांगी है। क्योंकि मृत्युंजय जी, आई ट्रूली बिलीव कि जब हम पैदा होते हैं तो हम कितनी सांसें लेंगे, द नंबर ऑफ करेक्ट। ब्रेथ्स वी टेक,
it is written the moment we are born, even before we are born, so it's already written. और मैं आपको यही वजह बताऊं, this is the reason कि हमारे जो पुराने साधु सन्यासी 100 200 साल जीते थे, क्योंकि वो लोग अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल रखते थे, वो लोग प्राणायाम करते थे, तो बहुत लंबी सांसें लेते थे। तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स लिखी होती हैं कि आप कितनी सांसें लेंगे, तो वो ज्यादा लंबी सांसें लेते थे तो 200 साल तक जीते थे। तो दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड वेरी लॉजिकल। जितने साल मैं लेकर आई हूँ इस दुनिया में, वो मुझे नहीं लगता कि खुदा के अलावा कोई भी मुझसे छीन सकता है। जो एक सवाल है, आई थिंक everybody wants to know this question, who is Subhi Khan? That is the biggest question, because people know you, people watch your programs on TV screens, but who is Subhi Khan? जी देख मृत्युंजय जी, इस सवाल का जैसे आपने खुद ही जवाब दिया कि पीपल नो मी बट स्टिल दे हैव दिस क्वेश्चन, तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि देखिए मेरा नाम सुबूही खान है, पर बहुत सारी चीजें मतलब लोगों को लगता है कि पैराडॉक्स है या मैच नहीं करती हैं। जैसे मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सनातन धर्म को, हिंदू कल्चर को प्रमोट करती हूँ, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एट टाइम्स पीपल इवन आस्क मी कि आर यू अ मुस्लिम और यू अ हिंदू, आर यू अ कन्वर्टेड। तो ये क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं। तो बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा, मैं इसको जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए सबसे पहले हम लोगों को धर्म और पंथ में फर्क पता होना चाहिए मृत्युंजय जी। धर्म को मैं मानती हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जिसका मतलब है कर्तव्य पालन। जो आपको सिर्फ आपको क्या कर्तव्य करना है। सनातन धर्म इस पूरे पूरे नेचर का है, पूरी प्रकृति का है। नदियों का काम है आपको पानी देना, बहना, पेड़ों का काम है आपको फल देना, सूरज का काम है आपको एनर्जी देना, रोशनी देना, वो उनका धर्म है। तो आप इस दुनिया में अगर पैदा हुए तो आपका कोई कर्तव्य है, दैट इज योर धर्म, दैट इज सनातन धर्म। और आपने कोई एक पूजा पद्धति चुन ली अपने किसी भगवान तक पहुंचने के लिए, या उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को महसूस करने के लिए आपने एक रास्ता चुन लिया, दैट इज योर फेथ, जिसको हम लोग नॉर्मल पंथ के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं धर्म से सनातनी हूँ, मैं पंथ से मुस्लिम हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने एक पूजा पद्धति चुन ली, वो मेरी परंपरा है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है, तो उसका मैं सम्मान करती हूँ। मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान इसी कॉन्सेप्ट से बोलती हूँ कि मेरा धर्म सनातनी है, मेरा पंथ मुस्लिम है। तो मैं अपने कर्तव्य पालन करते हुए अपने पंथ को मानती हूँ। और हिंदू को मैं मानती हूँ कि ये कल्चर है, कल्चरल एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। सिंधु नदी के इधर रहने वाले सब लोग हिंदू, क्योंकि उस वक्त लोगों से ह नहीं बोला जाता था, सौ नहीं बोला जाता था सिंधु के लिए, तो वो दे स्टार्ट कॉलिंग इट हिंदू। तो आप किसी भी पंथ को मानते हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर फेथ यू बिलीव इन, अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जैसे यूरोप में पैदा होने वाले यूरोपियन है, अमेरिका में वाले अमेरिकन है, ऐसे हिंदुस्तान वाले हिंदू हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं धर्म से सनातनी हूँ, पंथ से मुसलमान हूँ, संस्कृति से हिंदू हूँ, दैट इज सुबूही खान। Some people presume that your mother is Hindu, father is Muslim. Is it true? Not at all. Both of my parents are born and brought up in Muslim family, and everybody in my family is a Muslim. So it is not true. डिस्प्यूट होता है आपके फैमिली में? क्योंकि कभी कभी आप पूरी तरह से इस्लामिक जो इस्लाम की नहीं बोलूंगा, लेकिन इस्लामिक जो कट्टरपंथी है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, उसका आप खोल के पूरी टीवी स्क्रीन पे आप बोलती हैं। डिस्प्यूट होता है इसको लेकर आपके फैमिली के अंदर? देखिए मृत्युंजय जी, मेरी फैमिली में डिस्प्यूट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग मेरा पूरा वर्जन सुनते हैं। मेरे बारे में जनरली लोगों को गलतफहमी इसलिए होती है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट मुझे कुछ मिनट्स अनइंटरप्टेड दीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी सीरमाही जी एक सवाल भी पूछ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को कैसे यूनाइट किया जाए, तो उसका जवाब भी मेरी इस बात से मिल जाएगा जो मैं बोल रही हूँ अभी। देखिए अगर आप मेरी कुछ बाइट्स सुनेंगे, सपोज करिए मैं कट्टरवादियों को कुछ बोल रही हूँ, या मैं तबलीगी जमात को, मौलाना शाद को कुछ बोल रही हूँ, या मैं किसी आतंकी संगठन को कुछ बोल रही हूँ, तो सिर्फ उतना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि मैं किसी भी फेथ के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो क्रिएटर है, जो अल्लाह है, भगवान है, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, रब्बुल आलमीन, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उस तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं हो सकता। तो वो मल्टी फेसेटेड है, तो उस तक जाने के मल्टीपल ही रास्ते हैं। सब रास्ते अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उन सब रास्तों पे कुछ धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं। सभी रास्तों पे उन धर्म के ठेकेदारों ने उन फेथ्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है।
वो आपको रास्ते में, आप जा रहे हैं अपने भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो आपको रास्ते में बताने लगते हैं ऐसे करो, इधर जाओ उधर जाओ, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, बट दे विल कंफ्यूज यू। तो मैं सिर्फ उन धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ बोलती हूँ, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ कि मैं इस्लाम के ढोंगी आशिकों के खिलाफ बोलती हूँ, जो एक्चुअली इस्लाम का मीनिंग नहीं जानते। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मृत्युंजय जी, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई थी। एक था स्पिरिचुअल इस्लाम, मोहब्बत वाला इस्लाम, प्यार वाला इस्लाम, पीसफुल इस्लाम, जिसको हम सूफीवाद के रूप में भी देखते हैं, जो जो जिसमें म्यूजिक भी हराम नहीं है, जो जो म्यूजिक में झूमते झूमते खुदा से मिल जाते हैं। और एक कट्टरवादी इस्लाम, एक आतंकवादी इस्लाम, एक पॉलिटिकल इस्लाम, जिनके लिए इस्लाम सिर्फ दुनिया में सत्ता फैलाने का एक तरीका है। उनके लिए म्यूजिक भी हराम है, डांस भी हराम है, मेडिटेशन भी हराम है, ड्राइंग भी हराम है, आर्ट भी हराम है, कल्चर भी हराम है। आप खुद सोचिए कि क्यों स्पेशली मुस्लिम यूथ ये सवाल सोचते होंगे, क्योंकि कौन गाना नहीं चाहता, कौन नाचना नहीं चाहता, किसको नेचर के पास बैठ के अच्छा नहीं लगता, हर यूथ चाहता है ये सब चीजें करना। तो देखिए, ये जो पॉलिटिकल इस्लाम वाला एजेंडा है, वो सिर्फ गजवाए हिंद वाला एजेंडा है, वो वहाबिज्म वाला एजेंडा है, जो ये है कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। बचपन से एक मुस्लिम माइंड को, बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको पहले अलगाववाद सिखाया जाता है कि नहीं तुम बाकी लोगों से अलग हो। जब वो अलगाववादी बन जाता है तो उसको कट्टरवादी बनाया जाता है कि नहीं बस जो तुम सोच रहे हो सिर्फ वही सही है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है उसके बाद उसको आतंकवादी बनाया जाता है कि अगर तुम्हारी करेक्ट। सोच में कोई यकीन ना करे तो उसको खत्म कर दो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे पाकिस्तान कोई रातों रात नहीं बन गया, ये पूरी एक फेज होती है, अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद एंड देन इस्लामिक स्टेट की डिमांड। तो मैं हमेशा उस वहाबी मानसिकता के खिलाफ बोलती हूँ, उस इस्लाम फैलाने वाली मानसिकता के खिलाफ बोलती हूँ, उस गजवाए हिंद के खिलाफ बोलती हूँ, जो गजवाए हिंद की आइडियोलॉजी ये कहती है कि जब तक हिंद का हर मंदिर, कल्चर, संस्कृति, इतिहास, शास्त्र खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक कयामत नहीं आएगी। वो लोग एक एजेंडा के तहत हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। तो मैं क्यों ना उनके खिलाफ बोलूं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सनातनी होना बहुत जरूरी है, अपना कर्तव्य पालन, मैं भारतीय हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश को ऐसे लोगों से बचाऊं। अगर मेरे अपने लोग मेरे देश के टुकड़े कर रहे हैं तो उनके खिलाफ खड़े होने की सबसे पहले मेरी ही जिम्मेदारी है। दो लाइन में मैं अपनी आपको बात बताऊं, हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति में इसको बोलते हैं, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। एक मैं सवाल विशाल का मैं सवाल लूंगा। ये पूछ रहा है कि हाउ कैन यू स्टॉप मुस्लिम किड्स टू गेट ब्रेन वॉश्ड इनटू नेगेटिविटी। ब्रेन वॉश जो मुस्लिम किड्स होते हैं कैसे रोक सकते हैं हम? कोई ऑप्शन है, कोई हमारे पास विकल्प है? जी, विकल्प बहुत सारे हैं, विकल्प एक्चुअली छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हैं। क्योंकि देखिए, मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ मृत्युंजय जी की कोई भी माँ के पेट से आतंकवादी पैदा नहीं होता, माँ के पेट से कोई अलगाववादी भी पैदा नहीं होता। अगर आप किसी बच्चे को बताएं ही ना कि वो किस फेथ को बिलोंग करता है, तो वो सब में मिलजुल के रहेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला रोल पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिकली मदर से स्टार्ट होता है, कि आप अपने बच्चे को किस तरह की टीचिंग्स दे रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट के लेवल पे भी, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे मदरसाज में ब्रेन वॉश्ड होते हैं, नॉट ऑल मदरसाज आर लाइक दैट, बट बहुत सारे। क्योंकि ये मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ क्यों। रीजन ये है कि हमारे, ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे भारतीय मुसलमान स्पिरिचुअल हैं जो भारत से प्यार करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस आर हाईजैक्ड बाय वहाबी पीपल। ठीक है, इन लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं कि जिन बच्चों को एकेडमिक मतलब साइड, जिन बच्चों का ये ध्यान है वहाबी उनके विचारधारा लिए। शायद बहुत नया विचारधारा 200 साल के आसपास पुराना है ना? देखिए, अब मैं इसको बोलूंगी कि रहा तो ये बहुत पहले से है, क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम का एजेंडा तो प्रॉफिट की डेथ के बाद ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसको स्पेसिफिकली वहाबी विचारधारा का जो नाम मिला है, वो आप सही कह रहे हैं कि वो काफी लेटर स्टेज में, एक इब्न अब्न अब आई कांट इवन प्रोनाउंस दोज अरेबिक नेम्स बिकॉज अरेबिक इज नॉट माय कल्चर। अब्न वहाब करके कोई बंदा था जो, जिसने एक पॉलिटिकल लीडर साउद के साथ मिलकर आइडियोलॉजी चलाई थी कि हम आपको पॉलिटिकल पावर में रखेंगे, आप हमको धर्म सत्ता में रखिएगा, तो हमारी दोनों की सत्ताएं चलती रहेंगी। तो ये आइडियोलॉजी वहां से चल रही है। जैसे आज के टाइम में भी आप देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एग्जैक्टली यही करती हैं कि कुछ लोगों अपीजमेंट करती हैं मुसलमानों का कि आप अपनी धर्म सत्ता चलाते रहिए और हमें वोट देते रहिए, हमारी राज सत्ता चलती रहेगी।
तो ये धर्म सत्ता और राज सत्ता का एक बहुत बहुत टॉक्सिक मैं गेम कहती हूँ कि ये है। मैं एक बहुत प्लीज इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाह रही थी मृत्युंजय जी, आपके चैनल के माध्यम से। आई होप आपके पास वी हैव दैट मच टाइम, आई जस्ट नीड फ्यू Yes, we have. सेकेंड्स। जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये जो वहाबी मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस देखी कैसे बना दिए हैं। कुछ जिन बच्चों को एकेडमिक इंक्लिनेशन है, जिनको पढ़ाई लिखाई का शौक है, उनके लिए देवबंद जैसे इंस्टीट्यूट्स बना दिए हैं। कुछ बच्चों को कर्म कांड का शौक होता है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है और बहुत एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड वे में अल्लाह को अप्रोच करना है। ऐसे लोगों के लिए तबलीगी जमात जैसे इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं कि हम आपको नमाज रोजा ये सब चीजें सिखाएंगे। कुछ फसादी होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, जैसे मैं कहती हूँ मेरे टाइप के होते हैं कि अब मतलब बहुत ज्यादा असर्टिव वे में, अग्रेसिव वे में करना चाहते हैं चीजें। तो उस तरह के बच्चों के लिए उन्होंने आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा और अल कायदा जैसे इंस्टीट्यूट्स बना दिए हैं। कोई अलगाववादी बना रहा है, कोई कट्टरवादी बना रहा है, कोई आतंकवादी बना रहा है, काम सबका एक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुस्लिम पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ऐसे लोगों से, ऐसी संस्थाओं से दूर रखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है मुस्लिम समाज में होनी चाहिए कि उनको हीरोज अच्छे बताए जाने चाहिए। जैसे कि औरंगजेब और दारा शिकोह में औरंगजेब को ग्लोरीफाई करते हैं ये लोग, ये हमेशा उस मुसलमान को ग्लोरीफाई करेंगे जो भारत के खिलाफ खड़ा हो। तो हमें नेशनल हीरोज ऐसे बताने चाहिए जो भारत के साथ खड़ा हो, जैसे हमें हीरो दारा शिकोह को बनाना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ कि कश्मीर में जब 1947 में पाकिस्तानियों ने कबायली अटैक किया था, तो जब कश्मीर में वो घुस रहे थे पाकिस्तानी, तो एक मकबूल शेरवानी नाम का एक लड़का था, उसने पाकिस्तानियों को कश्मीर में घुसने नहीं दिया था। 2 दिन तक उनको वो घुमाता रहा था, और जब पाकिस्तानियों को पता चला था तो उसको सरेआम चौराहे पे खड़े होके फांसी लगा दी गई थी। और मतलब आप ये सोचिए कि कश्मीर में वो हीरो मकबूल शेरवानी नहीं है, कश्मीर में हीरो बुरहान वानी है। तो जो ये पाकिस्तानी जानबूझ का के डेलिबरेटली, डेलिबरेटली ये हमेशा उन लोगों को हीरो बनाएंगे जो भारत के खिलाफ खड़े हैं। तो मुझे लगता है अपने हीरोज हमें पॉजिटिव बताने की जरूरत है। अगर जिस दिन मुस्लिम्स ने पॉजिटिव हीरोज से अपने आप को जोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो उनके मन में नेचुरली वो फीलिंग आ जाएगी कि नहीं, हमें भारत के साथ बोलना है या भारत के लिए बोलना है। In your opinion, madrasa should be banned? Do you think it is the root cause of all problems? देखिए, एब्सोल्युटली दे शुड नॉट बी बैन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस योर रिलीजन एंड प्रोपेगेट योर रिलीजन इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है कि मदरसाज डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन उनपे कोई रेगुलेटरी बॉडी सरकार को बना देनी चाहिए। आई थिंक जो हम आज के टाइम में जो सिचुएशन देख रहे हैं, शायद सीसीटीवी कैमराज हों ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि कुछ मदरसास का हमने देखा है कि कुछ बच्चों का सेक्सुअल वायलेशन भी होता है वहां पे, सेक्सुअल वायलेशन के भी केसेस हमें सुनने को मिले हैं। तो आई थिंक अगर आप उस पर कोई एक रेगुलेटरी बॉडी बना दें, और वो जो एकदम खुल्लम खुल्ला कुछ भी करते हैं, वो अगर वो उस पे टैब हो जाए तो बहुत हद तक चीजें संभल सकती हैं। दूसरा, कुछ चीजें प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, एक और एग्जांपल जो मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, इन लोगों ने अपने जो एजेंडा है काम करने का, उसमें एक मदरसा मॉडर्नाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद रखा है, जिसमें एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चों को कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान होना चाहिए। तो वो बच्चा, वो मुसलमान बच्चा हमारे देश के किसी भी और बच्चे से पिछड़ा ना हो। उसको ठीक है आप कुरान पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, लेकिन उसको नॉर्मल जो दुनियावी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश है और मैथ, साइंस, जो और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में जीने के लिए, वो सब्जेक्ट्स भी उनको पढ़ाए जाएं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से होना चाहिए। एंड आई थिंक कि गुरुकुल्स भी हमारे देश में बनने चाहिए। बहुत बहुत गुरुकुल्स का जो कल्चर था, वो देखिए लॉर्ड मैकॉले, जिनको हम लॉर्ड बोल के बहुत ज्यादा महिमा मंडित करते हैं, उन्होंने आके हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया। जब तक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल वाला था, हम लोग बहुत ज्ञानी, बहुत प्रकांड, बहुत पारंगत होते थे। गुरुकुल में एक सब्जेक्ट तब तक पढ़ाया जाता था जब तक आप उसमें स्पेशलाइज ना हो जाए। अब इन अंग्रेजों को हमें क्लर्क बना के रखना था, इन्हें हमें स्पेशलाइज तो करना नहीं था, तो ये अपना एजुकेशन सिस्टम ले आए। तो मुझे लगता है कि मुझे अगर कभी मौका मिला देश के लिए कुछ करने का, तो मैं सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम प्लस कॉलोनियल एरा की जो लॉज हैं वो खत्म करने की कोशिश करूंगी। और मैं चाहूंगी कि हर स्टेट में एक बहुत अच्छे लेवल का गुरुकुल होना चाहिए, जो हमारे पूरा वैदिक वे में, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि आप इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ तो खूब बोलती हैं, लेकिन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ आपको कोई बोलते आज तक देखा नहीं है।
आप बोलती ही नहीं है ओके। कि किसी ने देखा नहीं है। हाँ हाँ। ओके। देखिए मृत्युंजय जी, अगर जो लोग मुझे पूरी तरह से फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं कि मैं सही को सही बोलती हूँ, गलत को गलत बोलती हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा सनातन धर्मी होने की है, और सनातन धर्मी हमेशा कर्तव्य पालन की बात करता है। तो जो जहां पे गलत होगा मैं उसको गलत बोलूंगी। ये जो आपने पॉइंट पूछा ये थोड़ा ट्रिकी है, इस पे मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका दीजिएगा। कि देखिए, हिंदू का कट्टरवाद, अगर आप किसी को, पहले बात तो हिंदू बिगॉट्स होते नहीं है। अगर कोई हिंदू कट्ट होगा भी तो सिर्फ इस लेवल तक होगा कि नहीं नहीं मैं ये करूंगा, नहीं नहीं कर्मकांडी होगा, या ऐसा होगा कि नहीं मेरा तो यही प्रोसेस है, मैं तो यही मानूंगा। ठीक है, इस लेवल तक होगा वो। आपने कितने आतंकवादी हिंदू संगठन देखे हैं? हिंदू कभी किसी ही, ऐसा नहीं है कि हिंदूज क्राइम नहीं करते हैं। भाई क्राइम तो हर पंथ के लोग करते हैं, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन एक हीट ऑफ द मोमेंट में किया हुआ क्राइम, कि गुस्से में आपने कर दिया, और एक प्रॉपर एजेंडा के तहत, एक ऑर्गेनाइज्ड वे हम्म। में, एक डेलिब्रेट इंटेंशन के साथ आतंकवादी संगठन बना के, अलगाववादी संगठन बना के, कट्टरवादी संगठन बना के इस तरह से जो काम होता है, वो आई एम सॉरी टू से बट वो सो कॉल्ड वहाबी मानसिकता वाले लोगों ने जो इस्लाम हाईजैक कर लिया है, इस्लामिक सोसाइटी में ये काम होता है। और मैं सही में मानती हूँ कि देखिए मृत्युंजय जी, अगर मेरा अपना घर गंदा है और मैं जाके सड़क पे झाड़ू लगा रही हूँ, तो क्या मैं एक अच्छी इंसान हूं? मेरा जो पहला कर्तव्य पालन है अपना घर साफ करने का, वो तो मैं कर नहीं रही, और मैं सड़क साफ कर रही हूँ। तो जब मैं एक मुस्लिम हम्म। परिवार में पैदा हुई हूं, तो अपने समाज की गंदगी साफ करने की पहली जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए मैं इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ इतना ज्यादा अग्रेसिव वे में बोलती हूँ, क्योंकि मेरी ऑल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जब कोरोना में हम्म। पत्थरबाजी कर रहे थे ये लोग, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, कुछ मुस्लिम एरिया में, कुछ चंद मुसलमान, तो मैं यही बोल रही थी कि देखिए, अगर वहां 500 मुसलमान है और 50 पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो वो जो 450 मुसलमान है वो क्यों नहीं अपने घर से निकल के उनको चप्पल से मारते हैं? उन जब हम्म। जब तक आप मौन समर्थन देते रहेंगे, मौन समर्थन भी अपराध है। हम्म। तो मैं कैसे उन उस अपराध का मौन समर्थन कर दूं जो ना ही सिर्फ मेरे देश के खिलाफ है, बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि इस इस्लामिक हम्म। स्टेट और ये इस खिलाफत सिस्टम वाली आइडियोलॉजी से, गजवा हिंद की हम्म। आइडियोलॉजी से, या फिर पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाने की आइडियोलॉजी से पूरा विश्व जूझ रहा है। मृत्युंजय जी, पाकिस्तान और हम्म। कितनी इस्लामिक स्टेट्स में मुसलमान भी खुश हैं, आप देखिए। अगर किसी को लगता है कि इस्लामिक स्टेट खुशी की गारंटी है, तो जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं आप जाके देखिए, मुसलमान वहां पे, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है मुस्लिम को। इतनी फिरका हम्म। परस्ती है, एक फिरका दूसरे फिरके को मारता है। पाकिस्तान में आप जाके देखिए, शियाओं को वाजिब कत्ल मानते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा है, अहमदियाज आर नॉट मुस्लिम्स। अहमदियाज को वो लोग हम्म। परसिक्यूट करते हैं। कितना सेक्टेरियन परसिक्यूशन है वहां पे। तो हमें ये भी हम्म। सोचने की, बलूचिस्तान से मेरे पास कितने मुसलमानों के मैसेज आते हैं मृत्युंजय जी, कि सुबुई जी हमें लगता है हम्म। भारत से अच्छा देश तो मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकता। बलूचिस्तान में मुसलमान तरसते हैं कि उनको कोई मौका मिले कि वो हिंदुस्तान में आ जाएं, क्योंकि उनको वहां पे मुसलमान ही मार रहे हैं, काट रहे हैं। अभी काबुल में देखिए आप क्या हुआ, मेटर्निटी वार्ड में 2-2 महीने के बच्चों को बम से उड़ा दिया इन लोगों ने। हम्म। तो क्या इस्लामिक स्टेट, तो मुझे लगता है कि इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो अल्लाह है जिसने पूरा दुनिया क्रिएट करी है, उसको अपने आप को फैलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हम्म। सर्वव्यापी है। ही डजंट नीड एक अस प्रश्न टू है स्प्रेड रजत हिज का। नेम। There is a question asked by Rajat. He wants to know, is there any extremist elements in कुरान? क्या कुरान में कुछ एक्सट्रीमिज्म ही पढ़ाया जाता है? आपने कुरान पढ़ा है? वेरी गुड क्वेश्चन रजत जी, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैंने कुरान, मैं यही इसका मैं आपको बताती हूँ, मैं कुरान पढ़ रही हूँ। मैंने कुरान पूरा नहीं पढ़ा है। आई एम ऑन द वे ऑफ रीडिंग कुरान विद मीनिंग। मैंने बचपन में हम्म। अरेबिक में तो पढ़ लिया था। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, हर मुसलमान बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाया जाता है, दैट इज देयर। ये मैं एक इस्लामिक सोसाइटी की अच्छी चीज मानती हूँ। कि ये मुझे लगता है कि ये हम हिंदुओं को सीखने की जरूरत है। हम लोगों को बचपन से भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती है। ABCD पढ़ाएंगे, कौन से प्ले स्कूल में डालेंगे ये डिसाइड होता है, कौन से अच्छे स्कूल में डालेंगे कंपटीशन में लगा दिया सर। जाता है। लेकिन हम लोगों को हमारे कल्चर से नहीं जोड़ा जाता है। हमें सुपरमैन, हम्म। स्पाइडरमैन, बैटमैन, इस तरह के हीरोज पढ़ा दिए जाते हैं, फिक्शनल सुपर हीरोज। लेकिन हमें श्री राम, हम्म। श्री कृष्ण और हमारे रामायण महाभारत के जो हीरोज हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ये हमें इस्लामिक सोसाइटी से सीखने की जरूरत है कि इस्लामिक सोसाइटी में चाहे घर में खाने को नहीं हो,
लेकिन कुरान जरूर पढ़ाते हैं। गलती ये करते हैं कि वो कुरान हमेशा अरबिक में रटवाते हैं। हर बच्चा मदरसा में आप चले जाइए, कुरान रटा होता है। ये जो इस्लाम का अरबीकरण है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से मौलानाओं ने हाईजैक कर लिया है, जिसको तारिक फतेह जी कहते हैं मुल्ला का इस्लाम। क्योंकि कुरान आप देखिए मृत्युंजय जी, दुनिया की सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होने वाली किताब है, लेकिन आप अरबी में ही रटवाते हैं। आप जानने नहीं देना चाहते हैं मतलब। और अगर कोई, जब उनको मतलब नहीं पता होगा तो वो मौलानाओं से पूछेंगे, मौलाना अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके बताएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि रीजन ये भी है कि अगर मायने से, मीनिंग से पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या है मृत्युंजय जी, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, कि जितने भी धर्म पंथ के ग्रंथ होते हैं, कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, वो क्योंकि इतनी हायर लेवल की बातें होती हैं, वो सिंबॉलिक होती हैं। अगर हम बोलते हैं श्री कृष्ण की 16,000 बीवियां थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू ये बोलने लगे कि हमें तो 16,000 बीवी रखने की इजाजत है, हम रखेंगे। उसके पीछे कोई ना कुछ सिंबॉलिक, डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। तो हमें वो समझने की जरूरत है। लिटरल मीनिंग में आप कोई भी चीज उठा के और तलवारबाजी करना स्टार्ट कर दीजिए, वो कोई लॉजिकल और रैशनल बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी ग्रंथ की, किसी भी वर्ड्स को समझने के लिए थोड़ा सा ये भी अपना माइंड लगाना चाहिए कि इसके पीछे सिंबॉलिक या स्पिरिचुअल मीनिंग क्या हो सकता है, जो सबको जोड़ने वाला हो। क्योंकि आप जिस दो चश्मे से क्वेश्चंस और पढ़ेंगे, बचे आपका हैं। वही इंटरप्रिटेशन होगा। दो क्वेश्चंस और बचे हैं आपके लिए, लेकिन उसके पहले उमेश पटेल कह रहे हैं कि आपको सलाम फॉर योर पेरेंट्स। आप पढ़ सकती हैं इनका मैसेज। थैंक यू सो मच उमेश जी, आपको भी लाखों सलाम, और उन सभी भारतीयों को लाखों सलाम जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। इनका गोविंद का आप क्वेश्चन पढ़ सकती हैं। एवरी रिलीजन हैज नेशन। व्हाई नॉट वन नेशन फॉर हिंदू? ओके, देखिए इनका कहना है कि हिंदू का नेशन क्यों नहीं है पूरे पूरे धरती पर। जी, देखिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला है। मुझे लगता है कि हमारा जो हिंदू कल्चर है, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा कल्चर ओल्डेस्ट है। इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। जब दुनिया में लोग मतलब मोटे मोटे कपड़े पहन के घूम रहे थे, हमारे यहाँ फाइन, एकदम बहुत महीन फैब्रिक पड़े जाते थे। जब दुनिया में लोग जानवरों की तरह रिप्रोड्यूस करते थे, हमारे यहाँ ऋषि ऋषि वात्स्यायन जी ने कामसूत्र लिख दी थी। और जब दुनिया में जो है विमेन राइट्स के नाम की भी कोई चीज नहीं थी, हमारे यहाँ भगवान को भी अर्धनारीश्वर माना जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारा कल्चर तो अब तो वो टाइम आने वाला है गोविंद जी, कि हमारा ही नेशन नहीं, पूरी दुनिया सनातन धर्म की तरफ देख रही है। जैसे मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान से मुझे बलूच भाइयों बहनों के मैसेज आते हैं, उनको भी लगता है कि सनातन धर्म इज द सेफेस्ट। बहुत सारे मुसलमान जो इस्लामिक स्टेट्स का दंश झेल रहे हैं, या फिर हमारे देश में भी जो बहुत सी स्टेट्स ऐसी जो इस्लामिक स्टेट वाली मानसिकता झेल रही है, जैसे वेस्ट बंगाल से मुझे मुस्लिम्स के मैसेज आते हैं, कश्मीर से मुझे मुस्लिम्स के मैसेज आते हैं। तो अब तो वो टाइम है कि हिंदू कल्चर और सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैलने वाला है। तो हम अपनी एम्बिशन को इतना छोटा क्यों करें, टू लिमिट इट फॉर जस्ट नेशन? व्हाई नॉट द एंटायर वर्ल्ड? Vairo Mishra is saying that you don't speak against any religion. You speak against religious extremism. आप एक पढ़ सकते हैं क्या? मृत्युंजय जी, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक आई कैन रीड, मैं पढ़ लेती हूँ। It seems to me that she has a very clear head on what is right and what is wrong. Thank you so much. That it's exactly is what Sanatan Dharma is. I don't like the sentences because she's speaking against Muslims, but it's the way she's showing the true colors of religious extremism, which is probably going to be the biggest threat in near future. Keep it up, girl. Miles to go. थैंक यू सो मच भैरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा रिआइट्रेट करना चाहती हूँ कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, मैं बने हुए मुसलमानों के खिलाफ बोलती हूँ। मैं उन मुसलमानों के खिलाफ बोलती हूँ जो ना अपने जिस देश में पैदा हुए हैं, ना उसका इतिहास जानते हैं, और जिस फेथ को मानते हैं, ना उसका इतिहास जानते हैं। ना वो ये जानते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, ना वो ये जानते हैं कि भारतीय हिस्ट्री क्या है। जब वो दोनों हिस्ट्री जान लेंगे तो उनको पता चलेगा कि प्रॉफिट की नस्लों को जब वहां पे मुसलमान ही मार रहे थे,
जब वहां पे हाजी, काफिर, हाजी और काजी और मौलाना, इस तरह के लोग जब मार रहे थे प्रॉफिट की नस्लों को, तो या तो उनको जो सरपरस्ती मिली थी, जो प्रोटेक्शन मिला था, इमाम हुसैन ने कहा था अगर मुझे पता होता कि मुझे करबला की लड़ाई में शहीद कर दिया, मतलब शहीद करने की नौबत आएगी, इस तरह से घेर लिया जाएगा, तो मैं हिंद की सहायता लेता। तो मैं कहती हूँ कि काफिर कौन हुआ? काफिर वो हाजी हुए, वो मौलाना हुए, या कौन हुआ जो ये काफिर वाली जो आइडियोलॉजी हम सुनते हैं? तो इसलिए इसलिए मेरी वर्ड्स कभी कड़वे लग सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी पूरी एक कम्युनिटी को ब्लैक पेंट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ कई बार उनको जगाने के लिए कड़वे वर्ड्स मुझे बोलने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही कभी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में खेलते रहेंगे, कभी मौलानाओं के हाथ में खेलते रहेंगे। और आप देखिए कि स्थिति क्या है आज की डेट में, क्या क्या कितनी एजुकेशन परसेंटेज कितना है, एक मैं एम्प्लॉयमेंट में पूछूंगा परसेंटेज आपसे कि कितना है। काफिर का मतलब होता क्या है? बहुत सारे लोग काफिर बोलते हैं, खासकर मुस्लिम तबका के, और आपके जो आप पोस्ट करती हैं फेसबुक पे, उसके जी नीचे भी आपको भी लोग कहते हैं काफिर। क्या जी, होता है काफिर? देखिए काफिर वर्ड मृत्युंजय जी बहुत सभी पंथों में है, सभी पंथों में अपनी अपनी लैंग्वेज में है। काफिर का मतलब होता है नॉन बिलीवर, बिलीवर एंड हम्म नॉन बिलीवर। जैसे हम अपनी संस्कृति में कहते हैं धार्मिक या विधर्मी, तो एग्जैक्टली हम्म वही मीनिंग है कि जो जो अपना कर्तव्य पालन नहीं जानता है, जो गलत काम कर रहा है, वो काफिर है। इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल भी दिया लोग कि जो कमेंट्स प्रॉफिट कमेंट्स की, में कमेंट्स में आपको भी लोग वो, कहते हैं काफिर, तो बुरा लगता है यस आपको? यस, वो मुझे काफिर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने काफिर की डेफिनेशन ये बना ली है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। ये डिफरेंस हम्म है। जो जो गलत हम्म करता है, जिसको अपना कर्तव्य पालन नहीं करना आता, वो काफिर है। इसलिए मैंने आपको मौलानाओं का एग्जाम्पल दिया कि मेरी नजर में वो मौलाना काफिर हैं जो गलत हम्म पढ़ाते हैं बच्चों को, मेरी नजर में वो हाजी काफिर हैं, मेरी नजर में वो काजी काफिर हैं जो अपने इस्लाम के नाम पे और कट्टरपंथी के नाम पे मानवता विरोधी काम करते हैं, या जो प्रॉफिट मोहम्मद की हम्म नस्लों को जिन्होंने खत्म करने का काम किया इतने बड़े बड़े हम्म। टाइटल्स होने के बाद, तो दे आर काफिर। दैट मीन्स दे आर विधर्मी इन माई आईज। I would ask a direct question to you, a very direct question to you. क्या आपको लगता है कि जो आरएसएस, जिसको कई कई लोग मानते हैं कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, जी या जी, बजरंग दल, क्या आपको लगता है ये काउंटर फोर्स है, या आपको लगता है कि ये भारत के अंदर हिंदू एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा करने वाली फोर्स है? आपको क्या लगता है? मृत्युंजय जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या अपना सेल्फ डिफेंस करना गलत है? एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है, एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है, अगर आपके हाथ नहीं को तो आग फिर से जो टच किया इस्लामिक जाएगा तो एक्सट्रीमिज्म, आप जो भी डेफिनेटली इस्लामिक अपने आप ग्रुप्स को है, बचाएंगे। जिहादिस्ट ग्रुप्स है, वो भी तो यही कहेंगे ना कि हम तो सेल्फ डिफेंस में लगे हुए हैं। वो भी तो यही कहेंगे। देखिए देखिए, मैं आपको आरएसएस का एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आरएसएस को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ये सो कॉल्ड जो लेफ्ट, जो रेडिकल लेफ्ट है, या जो कम्युनिस्ट्स हम्म हैं, या जो जिनको मैं लेफ्टो इस्लामिस्ट्स बोलती हूँ, जिहादिस्ट बोलती हूँ, उन्होंने जबरदस्ती आरएसएस को ब्रांड करने के लिए उसको एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है। मैं आपको बताती हूँ कि 1925 में जब आरएसएस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, वो तब हुआ है जब हम्म हमारे देश को डेलिबरेटली स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जा रहा था। तो सिर्फ कंट्री को हम्म बचाने के लिए, तभी तभी मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी से रेजोनेट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना हम्म कर्तव्य पालन करने के लिए एज भारतीय एस्टैब्लिशमेंट किया था। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि दादरी में एक प्लेन क्रैश हुआ था, गल्फ का प्लेन क्रैश था। गल्फ का प्लेन हम्म क्रैश था, तो डेफिनेटली मुस्लिम उसमें पैसेंजर ज्यादा थे, तो वो बहुत सारे पैसेंजर्स मर गए थे, तो स्वयं सेवकों ने जाके उनका इस्लामिक तरीके से क्रियाक्रम किया था, उनको दफनाया था, सारी पूरा मुस्लिम सब परंपराओं का आरएसएस के थे। पालन करते हुए। सब स्वयं सेवक थे। और आप देखिए देश में कभी भी कहीं भी कोई भी आपदा आ जाती है, कोरोना के टाइम पे देख लीजिए, कहीं बाढ़ आ रही हो, कहीं भूकंप आ रहा हो, कहीं भुखमरी हो रही हो, सब जगह स्वयं सेवक हम्म आपको आगे आके दिखेंगे। और कहीं भी वो लोग ये देख के नहीं देते हैं कि हिंदू को दें या मुसलमान को दें। आरएसएस के मैं एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, मैं उनको बहुत मानती हूँ, मैं उनको पढ़ती हूँ। उनके वो ये बोलते हैं कि हमें एकात्मता के एहसास को नहीं भूलना है, हम सब एक हैं ये हमें याद रखना है, लेकिन आक्रमण का प्रतिकार करना है। यही हम्म सनातनी है। यही सनातनी है कि अंत जहां पे बचाना धर्म है, जहां पे अपनाना धर्म है, वहां पे सनातनी अपनाएगा, और जहां पे मारना धर्म है, वहां पे सनातनी मारेगा। अंत में आपसे दो प्रश्न बचे हैं। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चलता है, देयर वाज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन दिल्ली, एंड इनका नाम है सफूरा जरगर।
उनकी प्रेगनेंसी हो जाती जी बाद में। आपको ये जी। इश्यू मालूम है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी सफूरा जरगर पे। मैंने ये बोला था कि सफूरा जरगर के खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स हैं। उनको एक हम्म 10 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस रोड ब्लॉक करने वाले जो चार्जेस थे उनके ऊपर, चक्का जाम जो किया था हम्म दिल्ली राइट से पहले, उसमें उनको जमानत मिल गई थी। उसके बाद हम्म उनके ऊपर दूसरी एफआईआर हुई है जिसमें यूएपीए के अंडर उनके ऊपर चार्जेस हैं। यूएपीए जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि हमारी हम्म कंट्री में हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं, टेरर को कॉम्बैट करने के लिए जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, वो बहुत सीरियस चार्जेस हैं। तो मैंने तभी भी ये वीडियो बनाई थी कि प्रेगनेंसी पे फोकस मत करिए, अपराध पे फोकस करिए। और मैं अभी भी मैं हम्म कुछ लोग प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा रहे थे कि बच्चा पता नहीं किसका है, शाहीन बाग में पता नहीं क्या हो रहा है। वहां भी मैंने यही बोला था, क्योंकि वहां भी मैंने अपने कर्तव्य पालन करने की सोची थी कि एज अ सनातनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वुमन कि आप उसके अपराध को क्रिटिसाइज करिए, आप उस बच्चे को क्रिटिसाइज मत करिए जो दुनिया में भी अभी नहीं आया है, जो जो एक्चुअली भगवान का रूप है। तो क्रिटिसाइज हर क्राइम। और यही चीज मैं अब बोल रही हूँ कि वो बेल के ऊपर, क्योंकि उनकी थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली बेल रिजेक्ट करी है कोर्ट ने, और उनको ये बोला हम्म है कि जब आप चिंगारी से खेलेंगी तो हवा को दोष मत दीजिए कि आग इतनी दूर तक कैसे फैल गई। तो मैं ये बोलना हम्म चाहती हूँ कि देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से भी और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के हिसाब से भी कैटेगोरिकली गाइडलाइंस हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन का जेल में किस तरह से प्री एंड पोस्ट नेटल उनको केयर दी जाती है, उनकी मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल नीड्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रेगनेंसी क्रिमिनल लॉ में कोई ग्राउंड नहीं है आपको बेल मिलने का। और जेल में, तिहाड़ जेल में हजारों तादाद में ऐसे महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं। और देखिए, महिलाओं को पीरियड्स होना या महिलाओं को बच्चा होना, प्रेगनेंसी कोई महिलाओं की कमजोरी नहीं है जिसको आप विक्टिम कार्ड की तरह खेल रहे हैं। शी हैज अ हेल्दी हम्म प्रेगनेंसी एंड शी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। अच्छे से उनका वहां पे दवाइयों का, खाने पीने का, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो अपराध उन्होंने किया है उसकी सजा तो उनको मिलेगी। और एक एग्जाम्पल मैं आपको हम्म दोगलेपन का, हिपोक्रेसी का बताती हूँ मृत्युंजय जी, कि ये लोग जो हम्म लेफ्ट लिबरल्स जो सफूरा जरगर की प्रेगनेंसी को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, राजीव गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था, आई थिंक 7 कन्विक्ट्स थे, 7 लोगों को जो सजा हुई थी उसमें से एक नलिनी श्रीहरन थी। शी वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम्म उनको छोड़ दिया गया था या उनके चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए थे, उन्होंने अपनी बेटी को भी हम्म जन्म जेल में ही दिया है, नलिनी श्रीहरन। तो आप गूगल कर लीजिएगा हम्म चाहे उनका नाम। तो ये लोग देखिए, हम्म इनका पॉलिटिकल वेंजियंस देखिए आप, कि इनके टाइम में जब कोई चीज होती है तो वो नॉर्मल होती है, और सेम वही चीज बीजेपी के टाइम पे होती है तो उसको इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं। सफूरा जरगर को इतना इनोसेंट और विक्टिम की तरह ये लोग इंटरनेशनली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को हम्म समझने की जरूरत है कि कैसे यूथ को भी कंफ्यूज करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा, मोदी गवर्नमेंट ऐसे स्टूडेंट्स को अंदर डाल रही है। किस चीज के स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट्स हम्म पीएफआई सिमी शाहीन बाग में पीएफआई का हेड ऑफिस था, सीएए प्रोटेस्ट में यूपी में जांच एजेंसीज ने सिमी और पीएफआई के हाथ होने पाए गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स आतंकी संगठनों के हाथ में खेल रहे हैं, इन आतंकी संगठनों ने कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को हाईजैक कर लिया है। तो ऑब्वियसली इफ यू आर ओल्ड इनफ टू डू अ टेरर हम्म एक्ट, दैट मीन्स यू आर ओल्ड इनफ टू बी ट्राइड एज पर लॉ। तो उसमें फिर आप विक्टिम कार्ड हम्म खेलना कैसे स्टार्ट कर देंगे? मैम, चूंकि आप वकील है, मैं ये क्वेश्चन शायद आपसे ही बनता है प्रश्न करना कि जी एकता कपूर एक सीरियल बनाती हैं, बहुत जी सारे लोग नाराज होते हैं देश में, क्योंकि वो जी सैनिक के ऊपर रहता है, सैनिक बॉर्डर पे जाता है, सब कुछ त्याग कर जाता है और यही आकांक्षा लेकर जाता है कि हम सभी को सुरक्षित कर पाएगा। फिर एकता कपूर जी स्वाभाविक सी बात है, पैसे कमाने के लिए करती है और कोई दूसरा उनका मोटिव नहीं होता। तो एकता कपूर बनाती है ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, पॉपुलैरिटी मिले और फिर पैसे कमाए जाए, लेकिन उनके खिलाफ केस ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है केस? नहीं नहीं, एकता कपूर के खिलाफ आई थिंक एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। अच्छा। मल्टीपल कंप्लेंट्स हुई थी और अब उसमें एफआईआर रजिस्टर हो गई है। मैंने आपको बताया है, बॉलीवुड बहुत इंसीडियस वे में, मृत्युंजय जी, बॉलीवुड में बहुत इंसीडियस वे में, बहुत विशियस तरह से हिंदू हम्म संस्कृति के और हमारी हमारी इंडियन कल्चर के खिलाफ चीजें होती हैं। जैसे अभी एक अनुष्का शर्मा की पाताल लोक एक सीरीज आई है, तो इतना हम्म डेलिबरेटली इनका अटेम्प्ट होता है, लेकिन करते उसको इतना
हल्के तरह से हैं। छपाक एक मूवी आई थी जिसके अंदर जो एक एसिड अटैक जिस लड़के ने किया होता है, वो एक रियल लाइफ विक्टिम के ऊपर वो स्टोरी बनी थी, दीपिका पादुकोण की आई थिंक। उसमें जो कल्प्रिट होता है वो रियल लाइफ में एक मुस्लिम है, लेकिन मूवी जब बनती है तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, मुस्लिम से हिंदू रख देते हैं। तो देखिए, शुरू में अब से कुछ साल पहले तक मृत्युंजय जी मुझे भी ये लगता था कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, तब तक ऐसे लगता था। लेकिन जब मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा, बहुत सारी मूवीज में देखा, एंड आई मोस्ट सर्टन कि ये बहुत डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मनी लग रही है इस चीज में, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारा देखिए किसी भी राष्ट्र की जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत उसका युवा होता है। हमारे यूथ को बहुत भटका दिया गया है। बात यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम युवाओं की नहीं है, मुस्लिम युवाओं को कट्टरवादियों ने भड़का दिया है, और बाकी के जो फेथ्स को मानने वाले युवा हैं, जो बाकी पंथों को मानने वाले युवा हैं, उनको वामपंथी विचारधारा ने बहुत ज्यादा भटका दिया है। हिंदू कल्चर को ऐसा दिखाते हैं कि बहुत रिग्रेसिव कल्चर है, कि अगर आपने हिंदुइज्म की बात कर ली, डॉग, आई एम अ डॉग लवर, आई हैव 3 डॉग्स, अगर आप डॉग पालते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और अगर आप गाय के फेवर में कुछ बोल देंगे तो आप तो बहुत कट्टरवादी हैं, आप तो संघी हैं, आप तो बीजेपी के हैं। तो ये इस तरह की मानसिकता बना दी गई है। तो मैं हिंदू यूथ को भी बोलती हूँ कि हमारा तो इतना प्रोग्रेसिव कल्चर था, जैसे मैंने आपको अभी कामसूत्र का एग्जाम्पल दिया, हमारे कल्चर में सेक्स को और सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ शिवलिंग क्या है, शिवलिंग शिव और शक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ क्रिएशन को सेलिब्रेट करते हैं, प्रयागराज में जो कुंभ मनाया जाता है वो क्रिएशन का सेलिब्रेशन है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, कुछ हमारे मंदिर हैं, देखिए मध्य प्रदेश में खजुराहो है, और मार्कंडेश्वर महाराष्ट्र में मार्कंडेश्वर मंदिर है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, कर्नाटका में विरूपक्ष है, छत्तीसगढ़ में भूराम देव है, राजस्थान में रनकपुर जैन है। और जहाँ पे सेक्सुअलिटी सेलिब्रेट की जाती है उन मंदिर में आप जाके देखिए, वहां की कला शिल्प में पूरा सेक्सुअल फिजिकल जेस्चर्स पूरा वहां पे बने हुए हैं। तो हम लोगों का, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है वो है कि हमें इसके पार जाना है। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें काम जो है, सेक्सुअलिटी, चारों पुरुषार्थ का एक पार्ट है। धर्म होता है, एक धर्म होता है, एक काम होता है, एक अर्थ होता है, एक मोक्ष होता है। तो उसमें जो काम है वो सिर्फ एक पार्ट है। तो हम लोगों को सेक्सुअलिटी भी पढ़ाई जाती है, जो आज मॉडर्न टाइम्स में हम देख रहे हैं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, वो हमारे यहाँ हमेशा से है। हम लोगों के यहाँ कभी रेप कल्चर नहीं था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ हीरोज श्री राम पढ़ाए जाते थे कि महिला सम्मान करना है। हमारे यहाँ महिला सम्मान में लंका जला दी जाती है, ऐसी कहानियां बताई जाती थी। द्रौपदी के चीरहरण में महाभारत का युद्ध हो जाता है, ऐसी कहानियां बताई जाती थी। और तो और अच्छा, महिलाएं लेकिन और मैं आपसे महिलाएं एक और सीधा पर्सनल क्वेश्चन अपने करूंगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में कि एक तरफ से ये कहा जाता है कि भगवान राम महिला के लिए लंका जला देते हैं या हनुमान जी जलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको इस तरीके से नहीं देखते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं कि सीता जी को छोड़ आते हैं भगवान राम, ये है राम। जी, आपके जो सवाल का दूसरा जवाब देने से पहले जी 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 मैं जरूर बोलिए। इसको, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। जी, आपके ये जवाब देने से पहले मैं जरूर वो बात बोलूंगी जो आपने मेरी काट दी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ। मैंने आपको ओके। 2 पुरुषों के एग्जाम्पल दे दिए थे, मैं आपको एक महिला का एग्जाम्पल देना चाह रही थी कि हमारी संस्कृति में महिलाएं अपने सम्मान के लिए महिषासुर का वध कर देती थी। तो रेप कल्चर भी हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ श्री कृष्ण की बीवी रुक्मणी जी थी, लेकिन हमारे यहाँ श्री कृष्ण और राधा के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्यार भी हम लोगों के यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग वो ढकोसलावाद और सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक एक जो समाज ने जो बना दे हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था। हम लोगों के यहाँ फीलिंग्स, इमोशंस और सही गलत के बेस पे पढ़ाई जाती थी। सो इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव कल्चर, सिविलाइजेशन। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि श्री राम अगर इतना महिला सम्मान करते थे तो उन्होंने इस तरह से सीता जी को क्यों त्याग दिया? देखिए, इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है, वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिनको मैं बहुत मानती हूँ उनसे मैंने सुना है। उन्होंने मुझे बताया है कि ये वाला जो एपिसोड है, ये वाली जो पार्ट है रामायण का, कि उनको वो कर दिया जाता है, मतलब सीता जी को धरती में समा जाती हैं या अग्नि परीक्षा उनको देनी पड़ती है, वो एक्चुअली बाद में ऐड किया गया है। दैट वाज नॉट द रियल हिस्ट्री।
ये एक थ्योरी है कि ये ओके। बोला जाता है कि हमारे हमारे कल्चर को बदनाम करने के लिए ये जानबूझ के ऐड किया गया है, दिस इज नॉट ऑथेंटिक। जैसे हर हर किसी भी कल्चर के किसी भी उसके जो ग्रंथ होते हैं, जो रिटन स्क्रिप्चर्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं करप्शन किसी लेवल पे हो जाता है। तो एक थ्योरी ये है कि ये हुआ ही नहीं है। दूसरा एक हाँ। चीज इसमें ये है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि श्री राम जब जब सीता जी नहीं रही श्री राम के पास, तो उसके बाद श्री राम ने एक तो आजीवन कभी दूसरा विवाह नहीं किया। आप इतिहास में कोई मुझे एक, उस वक्त एक मेल कई कई शादियां किया करता था, एक मेल के पास कई कई रानियां होने का एग्जाम्पल्स हमें हर कल्चर में मिलता है। श्री राम ने कभी राजा थे, पूरी हाँ। जिंदगी दूसरी शादी, जी, कभी दूसरी शादी नहीं करी। और जब कोई पूजा भी होती थी, जिस पूजा में वाइफ का होना जरूरी होता है, तो सीता जी की एक सोने की मूर्ति बना के रखी जाती थी कि नहीं, सीता जी ही मेरी बीवी है, उनके साथ मैं पूजा करूंगा। तो मुझे पर्सनली, मैं उस चीज को इंटरप्रिटेशन ये लेती हूँ कि मे बी शायद, देखिए, क्योंकि ये सारी हिस्ट्री हमें कुछ ना कुछ लेसन्स देने के लिए पढ़ाई जाती है, तो हो सकता है हमें ये लेसन देने के लिए पढ़ाई जाती हो कि कभी क्रोध में या जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप सही में किसी से प्यार करते हैं, वो आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो आप जिंदगी में कभी उसको भूल नहीं पाते हैं। हो सकता है हमें ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि श्री राम बहुत ज्यादा दुखी थे सीता जी के जाने के बाद, तो हो सकता है कि हमें ये मैसेज देने के लिए ये इस तरह का, ये मतलब ये मेरा अपना वो है, मैं दिस इज ये, मैं आपको किसी बहुत कोई कहीं की कोई लिखी हुई बात, देयर इज नो सोर्स टू दिस व्हाट आई एम सेइंग, बट मैं अपनी इंटरप्रिटेशन इस चीज की लेती हूँ कि शायद हमें ये सिखाने के लिए ये हो इसके अंदर ये एपिसोड हो। बट मैंने ये सुना है कि दिस एपिसोड इज नॉट ऑथेंटिक, इट हैज बीन एडेड टू डिफेम आवर कल्चर। तो ये इस पे एक, मैं अंत में एक सवाल बचा हुआ है, इसके बाद कुछ लोगों की चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। आपका क्या मानना है चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट्स पे? बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि चाइना की, देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, चाइना की छोड़िए, मैं कहती हूँ आप कम्युनिस्ट्स की हिस्ट्री उठा के देखिए, इन लोगों की जो मानसिकता है, आप जो कम्युनिस्ट्स के जो आइडियोलॉग्स हैं, ठीक है, लेनिन, स्टेलिन, आप इन सबको उठा के पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग इंसान को एक कमोडिटी की तरह मानते हैं। इनको ये लगता है कि बस रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 नेसेसिटी है इंसान की, आप उसको बस वो चीज देते रहिए और उसके बाद वो आपका गुलाम है, आप उससे कुछ भी काम कराइए। और जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं, दे आर द मोस्ट वायलेंट पीपल। ये लोग मोदी जी को फासिस्ट बोलते हैं। आप इनका इतिहास उठा के देखिए, वर्ल्ड वॉर से 3 गुना ज्यादा लोगों का परसिक्यूशन इन कम्युनिस्ट्स ने किया है। इन लोगों की कंट्री में तो हाँ। मतलब आप देखिए, कोई सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, इनकी स्टैटिस्टिक्स, देश में क्या हो रहा है, वो लोगों के पास नहीं जाता है। कितने लोग मर रहे हैं, कोरोना वायरस से कितने लोग मर गए होंगे, सही नंबर्स नहीं बाहर आया होगा। तो ये लोग, देखिए, डेफिनेटली इनकी मोनोपोली दुनिया, इनका सिर्फ एक सत्ता फैलाने की एक मोनोपोली है, जो लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ तलवार के जोर पे करते हैं, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो प्यार प्यार से लोगों को कन्वर्ट करते हैं, किसी गरीब को खाना दे देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। और कुछ लोग, इन लोगों की मानसिकता है कि ये बिजनेस में अपनी मोनोपोली करते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे, मृत्युंजय जी? यस, यस। मैं एक जी। तो ये जो चाइना की, एक- मेरी बात पूरी नहीं हुई है, प्लीज प्लीज लेट मी फिनिश, ओके। कि चाइना की जो ये फिलॉसफी है, वो मार्केट को पूरा हाईजैक करके इस तरह की चीज करते हैं। अब आप देखिए कि हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अभी मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो एक स्टार्ट किया है हम लोगों का कैंपेन, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भरता से ही आत्मसम्मान आता है। हम लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए इंटरनेशनल की चीजों पे, किस तेल पे, अब मोस्टली मोबाइल्स आर मेड इन चाइना, कितनी सारी चीजें मेड इन चाइना। तो अगर हम उनके खिलाफ बोले भी तो कैसे बोले? तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोगों को एटलीस्ट बहुत सारी चीजों में तो हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें जिंदगी तो जीनी है। मैं देखिए, हम यूटोपियन कॉन्सेप्ट की बात नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिकल रियलिटीज की बात करनी है। एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद बैनिंग और अनइंस्टॉलिंग द चाइनीज एप्स। हमारे मोबाइल में जो चाइनीज एप्स हैं, एटलीस्ट उनको अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स को अनइंस्टॉल करना शुरू करें, धीरे धीरे इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। तो जब तक हम इंटरनेशनल डिपेंडेंस से नहीं निकलेंगे, तब तक हम इन इंटरनेशनल पावर से या एंटी नेशनल पावर से नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि हमें बिजनेस को में अपनी प्रभु सत्ता
दिखा के और हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट करके हमें गुलाम बनाना और अब्यूज करना बहुत पुराना इतिहास है इन लोगों का, जो कि हमें अब एटलीस्ट समझ जाना चाहिए। I have a question from Kaji Giyasuddin. He's asking that you are earning so much money from BJP. I think the same How question. much you are, yes, how much I would like to read this. This is interesting. How much you are earning from BJP, ma'am? Have you talked about anything on our migrants laborers? दो धोखला बात मत कीजिए, दोगला बात मत कीजिए. Talk something about our migrant laborers. Okay. काजी गयासुद्दीन जी, आप शायद लेट आए हैं. मैंने शुरू में ही बोला था कि मुझे अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए बीजेपी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लकीली आई एम मैरिड टू अ मैन हु इज अर्निंग वेरी गुड एंड आई एम आल्सो इंडिपेंडेंटली अर्निंग. मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो मुझे बीजेपी से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है. और ये बहुत आपकी छोटी मानसिकता दर्शाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान सच बोल रहा है तो किसी से पैसा लेके बोल रहा है. बहुत दुखद स्थिति है. झूठ को हम लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सच को हमें एक्सेप्ट करने में बहुत दुख होता है. माइग्रेंट लेबर्स की आपने बात करी, मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगी. बहुत दुख होता है किसी भी माइग्रेंट लेबर की कोई तस्वीर आती है उनके पैरों में छाले देखकर, या कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रही है, बहुत दुख होता है. लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है मृत्युंजय जी, और अब जो मेरे इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि 130-135 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है. हम लोग अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ एक राजसत्ता से, एक पार्टी से ये उम्मीद करें कि वो मैजिक वॉन्ड घुमा के सब कुछ कर देगी, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. जब हमें अगर हम लॉकडाउन जल्दी नहीं करते तो कम्युनिटी ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता. इतनी स्पीड से कोरोना फैलता कि मतलब मैं कहती हूँ कि दफनाने की और जलाने की भी हम लोगों को जगह नहीं मिलती. कब्रिस्तान, शमशान घाट कम पड़ जाते. तो उस वक्त एट द अर्लीस्ट लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था, जो बहुत अच्छी सोची समझी एक इमोशनल नियत के साथ मोदी जी ने किया था. उन्होंने इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया. तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलने ही थे, जो हमें माइग्रेंट लेबर्स के तौर पे देखने को मिला. आप पॉजिटिव ये देखिए कि कितने लोग देश में भूख से मरे. मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक भी नहीं मरा होगा, लेकिन जगह जगह, गली गली, एक एक घर में राशन पहुंचाया जा रहा है. आप देखिए कि बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हार गई हैं. भारत ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया है कोरोना के टाइम में कि दी एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू भारत, कि आप लोगों ने कैसे किया. चाहे वो हम लोगों की इम्यूनिटी हो, चाहे वो हम लोगों की एकता हो, या कुछ लोगों ने ताली थाली बजाने का मजाक उड़ाया था. देखिए, ताली थाली बजाने में भी मैं ये मानती हूँ मृत्युंजय जी कि किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपको पहले माइंड में जीतना पड़ता है. जब हम लोग एज इंडियंस, हम लोगों में ये एकता, ये यूनिटी, ये विश्वास होगा कि नहीं हम लोग इस बीमारी से जीतेंगे, जब साइकोलॉजिकली जीतेंगे, क्योंकि इसका इलाज तो कोई है नहीं, आपकी इम्यूनिटी को इससे लड़ना है, तो आपको साइकोलॉजिकली ही सबसे पहले स्ट्रांग होने की जरूरत है. तो हमें इन सब चीजों की पीछे की डेप्थ को देखने की जरूरत है. बनिस्बत आप एकदम जाके किसी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें. एक घर चलाना ही लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना मुश्किल होता है, और पूरा 135 करोड़ लोगों का देश चलाना. और जो लोग इस वक्त बीजेपी और मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब तो ये वक्त है कि आप जिस भी आराध्य को मानते हो, आप पूजा करिए या नमाज पढ़िए या चर्च जाइए, आप दिल से ये दुआ मांगिए कि इस बार इस महामारी में मोदी जी ना हारें. क्योंकि अगर इस वक्त मोदी जी हार गए तो 135 करोड़ लोग हार जाएंगे. तो इस वक्त तो हम सबको एकजुट होकर उनका साथ देना चाहिए. Okay, what message you would like to give out to those who are watching this video or will be watching this interview? What message What you would message like to do I give have? out? Okay. Yeah. श्योर. देखिए, एक मैसेज मैं स्पेशली हमारे यूथ को देना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोगों को अपनी सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल और जो हिस्टोरिकल, जो हमारे देश से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, वो जरूर जानने चाहिए. ठीक है, आप बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट विभाजन के बाद से अब तक की हिस्ट्री अपने देश की प्लीज जरूर पढ़िए. क्योंकि देखिए, राजसत्ता, देश चलाने का सिर्फ एक पार्ट होता है. राजसत्ता से भी बड़ी चीज होती है समाज सत्ता. हम लोग अगर एक एक सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान जाए तो हम लोग अपनी गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने अपने लेवल पे भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. और एक मैं और छोटी सी बात आपको बोलती हूँ कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो लोग चिल्लाते रहते हैं, उनको मैं ये बोलती हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A भी पढ़ लीजिए संविधान का जाके. इनफैक्ट मैं तो गवर्नमेंट से ये
रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में फंडामेंटल राइट्स पूरा नोटिस बोर्ड में पेस्ट होने चाहिए. फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. Yes, fundamental rights and fundamental duties both should be pasted on the walls of colleges and universities, ताकि हम लोगों को पता हो कि हमारा कर्तव्य क्या है हमारे देश के लिए. तो प्लीज थोड़ा चाहे एक छोटी सी बुक से पढ़ना स्टार्ट करिए. पढ़ने का शौक आपको नहीं है, वीडियो सुनना स्टार्ट करिए. आजकल तो हम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस, सोशल मीडिया है. अच्छे लोगों को पढ़िए. एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज अच्छे लोगों को पढ़िए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट भी हैं. कुछ लोग ऐसे इंसीडियस इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं जो गलत जहर आपके दिमाग में भरते हैं, गलत इतिहास आपको पढ़ाते हैं. तो नेशनलिस्ट लोगों को पढ़िए. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को इतिहास में दबा दिया इन लोगों ने. उनकी कोई बात ही नहीं करता. मैं युवाओं से बोलती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए. कितना वीर रस है उनकी कविताओं में, कितना हमें अपने देश के लिए फीलिंग्स, भावनाएं आती हैं पढ़ के, कितना जोश आता है, कितनी हिम्मत आती है. तो ये थोड़ा सा मैं मैसेज यूथ को स्पेसिफिकली देना चाहती हूँ. और अपने हिंदू कल्चर को प्लीज रिग्रेसिव मत समझिए. बहुत ज्यादा द मोस्ट प्रोग्रेसिव कल्चर इन द एंटायर वर्ल्ड इज हिंदू कल्चर एंड सनातन धर्म. आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें आप हिंदू धर्म को प्रमोट करती हैं. मैं सही बोल रहा हूँ? Your voice is breaking. Can you please repeat the question, Mrityunjay ji? I think you have an organization, and this organization is meant to promote Hinduism. अगर मैं सही गलत नहीं हूँ तो आप जी किसी I would like to correct you. Yes. जी. I do not have an organization, but yes, I'm a national spokesperson of an organization, a national spokesperson and advisory board member of an organization called Eternal Hindu Foundation, which is working on the resurgence of Sanatan Dharma. और उसके जो मेंटोर्स हैं वो आप सभी लोगों ने शायद उनका नाम सुना होगा. रिस्पेक्टेड माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी, जिनको सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है. बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं और बहुत समाज के लिए सोचते हैं, सालों से काम करते आए हैं. और विजय कौशल जी महाराज है मेंटोर उस ऑर्गेनाइजेशन के. उसकी मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ. तो यस, आई एम वर्किंग विद देम इन एडिशन टू व्हाट आई एम डूइंग इन माय ओन एक्टिविज्म. एक बहुत सारे लोगों का हम प्रश्न नहीं ले सकते सभी लोगों का, लेकिन हम फिर से सुबह ही मैम आपके समक्ष आएंगे नेक्स्ट वीक. हम कोशिश करेंगे कि आप प्रार्थना करेंगे आपसे कि फिर से आप अपना समय हमको, हमारे दर्शकों को दीजिए नेक्स्ट वीक. तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा कहेंगे. थैंक यू सो मच. इट इज माय प्लेजर. Thank you so much for your time, ma'am. And thank you so much all of you who are joining us. Thank you so much.